Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up the remaining part of the fiction Bholi written by K.A. Abbas. So we've read till page number 57. Okay. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. So now, when the teacher came and she asked Bholi to tell her name, she became all nervous and she started sweating. And she was concerned that maybe her stammering voice or her stammering tongue will again humiliate her in front of the teacher. But her voice, the teacher's voice, was so soothing, and somehow she felt that she is a very kind woman and she would not laugh at her even if she stammered. Okay, so she made an effort of telling her name to her. So she tried telling her name, and obviously with a stammer. So bh, bho, whatever, she began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. Now, when Bholi started stammering again, so the teacher kind of encouraged her that okay, you are doing good, just try to tell your full name. So she finally said Bha Bho Bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Okay, so for a stammerer and for a nervous little girl, it was quite an achievement to tell her full name to an unknown person, to a complete stranger. Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart, and you will be able to speak like everyone else." So the teacher was quite affectionate and she patted her back, and she said that you just be fearless. Okay, there's nothing to be scared about. Just listen to your heart and be brave, and you'll be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? Now, Bholi was quite surprised at these words because she has never encountered someone who was so kind to her and who was so encouraging and motivating. So she just asked, really? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. अब टीचर ने उसे कहा कि हाँ, ये बहुत ही इजी होने वाला है, बट तुम्हें उसके लिए डेली स्कूल आना पड़ेगा. तो क्या तुम आओगी? तो भोली अग्री करती है, भोली नॉड करती है. नॉड करना मीन्स हाँ में सर हिलाना. तो वो बोलती नहीं है. अगेन शी इज़ कॉन्शियस दैट शी विल स्टैमर अगेन, तो शी डिडंट स्पीक बट शी जस्ट नॉडेड हर हेड. नो, से इट अलाउड. But the teacher was adamant that Bholi should speak up. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. और finally वो अटक अटक के yes बोल देती है. लेकिन वो खुद भी हैरान होती है कि उसने कैसे बोला. Didn't I tell you? Now take this book. अब टीचर कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना, अब ये बुक लो. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. अब वो एक पिक्चर बुक थी और उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स की पिक्चर्स थी. ठीक है, और उसके नीचे हर पिक्चर के नीचे उसका ऑब्वियसली नाम लिखा होगा. तो अब वो नाम तो नहीं पढ़ सकती थी बिकॉज अभी उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, बट शी वॉज एबल टू look at the picture and she was able to relate them to all those animals she has seen earlier in her life. In 1 month you will be able to read this book, then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. अब टीचर उसको और encourage करती है कि 1 महीने के अंदर अंदर you will be able to read this book, फिर मैं इससे भी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक तुम्हें मिलेगी. In time you will be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. और वो फिर उसको समझाती है कि देखो, धीरे धीरे तुम इतना पढ़ लिख जाओगी, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो जाओगी कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने से कतराएंगे.
and people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. और फिर वो कहती है कि लोग तुम्हारी बातों पे ध्यान देंगे और तुम बिल्कुल भी ये जो तुम्हारी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. अंडरस्टैंड. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब भोली इतना ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ somebody has treated her so politely, so nicely. ओके, तो उसको लगता है जैसे कि विलेज टेम्पल की बेल्स बजने लग गई हैं और जो सामने ट्रीज़ हैं उसके स्कूल और घर के उन पे एकदम से बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स ब्लॉसम हो गए हैं, खिल गए हैं. ठीक है, और अब वो उसकी लाइफ में एक नई होप थी. इवन उसको लग रहा था कि शी वॉज फीलिंग ऑल रिवाइव्ड. ओके, thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. अब उनका जो छोटा सा विलेज था वो काफ़ी डेवलप हो गया था और वो एक छोटा सा टाउन बन गया था क्योंकि वहाँ पर एक जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया था. और जो पहले वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं था, अब एक टिन शेड के अंडर एक सिनेमा हॉल भी बन गया था और एक कॉटन गिनिंग मिल थी. So ginning mill is basically a mill where cotton is separated from the cotton seeds. Okay, so और अब जो वो मेल ट्रेन थी वो भी जो पार्सल्स और कार्गो लेकर आती है वो भी वहाँ पे रुकने लग गई थी उनके रेलवे स्टेशन पे. So it was developing. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" अब एक दिन खाना खाने के बाद रात में रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि फिर हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए. ऑब्वियसली मैरिज प्रपोजल फॉर हिज डॉटर. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. Okay, fine. So उसकी वाइफ कहती है कि हाँ भोली काफ़ी लकी होगी ऐसा दूल्हा पाके और उसके पास एक बड़ी शॉप है, उसका खुद का घर है और उसके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है. ओके, और वो डाउरी की डिमांड भी नहीं कर रहा है. दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स. मोरोवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. अब रामलाल कहता है कि लेकिन वो ऑलमोस्ट मेरी एज का है. ओके, और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है और जो उसकी पहली वाइफ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं. सो ही इज़ अ विडोअर, ही लिम्प्स एंड ही इज़ क्वाइट ओल्ड फॉर भोली, बट दे आर स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pokemarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. अब उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि अगर वो 45-50 का भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम तो लकी हैं कि ये भोली के पोकमार्क्स के बारे में और उसकी जो लैक ऑफ सेंस है उसके बारे में उसको पता नहीं है. ओके, और अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया देन शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. येस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. व्हाट विल दैट विटलेस वन से? शी इज़ लाइक अ डम काउ. उसके फादर कहते हैं कि आई डोंट नो भोली इस पे कैसे रिएक्ट करेगी. तो उसकी मदर कहती है कि शी इज़ जस्ट विटलेस. विटलेस मीन्स शी इज़ सेंसलेस. ओके, एंड शी इज़ जस्ट लाइक अ डम काउ, एंड सो she won't say anything. Maybe you are right, muttered Ramlal. अब रामलाल कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो. In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. Now Bholi was listening to all of this. Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding.
A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. अब जैसे कि प्रॉपर जो बारात होती है बिशंबरनाथ, वो बारात को बैंड बाजे के साथ लेकर आता है फॉर द वेडिंग. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर. रामलाल जो है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि इतनी धूमधाम से उसकी बेटी की बारात आएगी. सो ही वॉज ओवरजॉयड. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. अब किसी ने भी नहीं सोचा होता है कि भोली की बारात जो है इतने धूमधाम से आएगी और इतनी एकदम शानदार शादी उसकी होगी. इवन जो भोली की बड़ी सिस्टर्स थी वो भी काफ़ी they were feeling jealous. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जैसे ही जो शादी का शुभ मुहूर्त था वो हुआ तो पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाइए. भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. अब भोली ने एक रेड कलर का सिल्कन एक ब्राइडल जो साड़ी होती है या लहंगा होता है वो उसने पहना हुआ होता है और वो आके जो अग्नि होती है उसके सामने बैठ जाती है, पवित्र अग्नि के सामने. Garland the bride, one of his friends prompted बिशंबरनाथ. अब बिशंबरनाथ के जो फ्रेंड होते हैं उनमें से एक कहता है कि दुल्हन को माला पहनाओ. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. जो दूल्हा है उसके हाथ में क्या होता है, एक गेंदे के फूल की माला होती है. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. और एक औरत जो है वो धीरे से भोली के चेहरे पे से घूंघट को हटाती है. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस. और बिशंबर जल्दी से एक नज़र उसके जो भोली है उसका चेहरा देखने के लिए हल्की सी एक नज़र उसके ऊपर डालता है. द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. अब वो जो माला होती है वो उसके हाथ में ही ठहर जाती है, रुक जाती है और ब्राइड जो है, जो भोली है, वो जल्दी से अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है. Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has poke marks on her face. अब बिशंबर ने उसका चेहरा देख लिया होता है तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या तुमने उसकी शक्ल देखी? उसके चेहरे पर तो गड्ढे हैं, पोक मार्क्स हैं. So what? You are not young either. तो उसका फ्रेंड कहता है, लेकिन तुम भी तो कोई कम एज तुम्हारी भी नहीं है, तुम भी कोई छोटे नहीं हो. Maybe, but if I am to marry, her father must give me 5,000 rupees. अब वो एक बनिया होता है, he is a grocer, तो वो बार्गेन करने की सोचने लगता है. वो कहता है कि ओके फाइन, शी हैज़ गॉट सम डिफेक्ट्स, तो नाउ आई विल डिमांड फॉर अ डाउरी ऑफ 5,000 रुपीज़. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर, एट बिशंबर्स फीट. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़. अब रामलाल जो है अपनी पगड़ी उतार के उसके पैरों में रख देता है, जस्ट लाइक अ ड्रामाटाइज सीन इन हिंदी मूवीज़. तो वो कहता है कि मुझे इस तरीके से सबके सामने शर्मिंदा मत करिए और आप 2,000 रुपये ले लीजिए. नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. अब वो फिर कहता है कि नहीं, 5,000 या फिर हम वापस जा रहे हैं, यू कैन कीप योर डॉटर. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. उसका फादर उसको रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए वरना मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगा. देन आउट विद 5,000. तो फिर जल्दी से 5,000 रुपीज़ निकालो. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब उसके चेहरे से रामलाल जो है उसके चेहरे पे आंसू आने लग जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं उसकी आंखों से, और वो अंदर जाके अपने जो तिजोरी होता है उसमें से पैसे निकाल के काउंट करने लग जाता है और लाके वो बंडल जो दूल्हा है उसके पैरों में रख देता है. On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. और अब बिशंबर जो है वो काफ़ी खुश होता है और उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान होती है कि चलो मैं जीत गया, मैंने जो जुआ खेला था उसमें मैं जीत गया, अब मुझे माला दे दो, मैं पहना देता हूँ. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. एक बार फिर जो दुल्हन होती है उसके चेहरे पे से घूंघट हटता है, लेकिन इस बार वो नीचे नहीं देख रही होती है, वो शर्मा नहीं रही होती है. शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट.
ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। ओके, और अब वो जो अपना जो उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड होता है, जो होने वाला दूल्हा होता है, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही होती है, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा होता है ना ही कोई नफरत होती है, बस एक कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स फीलिंग ऑफ डिसग्रेस। ओके, जैसे आप किसी के लिए आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, मतलब आपको उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो यू फील दैट वे। Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब बिशंबर जैसे ही उसके गले में माला डालने वाला होता है, एकदम से भोली अपना हाथ उस माला के ऊपर ऐसे एकदम बिजली की स्पीड से उसको माला को फेंक देती है, और वो सीधा जाके जो वहाँ पे फायर होती है उसमें, हवन कुंड जो होता है उसमें वो माला डल जाती है, और वो अपना जो घूंघट होता है उसे भी उतार के फेंक देती है। पिताजी said Bholi in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. और वो बड़ा क्लियरली, जैसे ही वो पिताजी बोलती है तो सब लोग शॉक में होते हैं कि इतना कैसे उसने क्लियरली बोला। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। वो कहती है कि अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। नाउ रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। रामलाल एकदम सदमे में चला जाता है। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। अब जो विलेज का क्राउड होता है, उनका जो माइंडसेट होता है, तो वो दुल्हन की गलती बताते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, ये देखो कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है, और कितनी ज़्यादा बेशरम है ये लड़की। Bholi, are you crazy? Shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज़्ज़त। अब रामलाल जो है वो उसको अपनी इज़्ज़त की दुहाई देते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें सबके सामने ऐसे शर्मिंदा करोगी? For the sake of your इज़्ज़त, said Bholi, I was willing to marry the lame old man. वो कहती है सिर्फ आप लोगों की इज़्ज़त का ही ख्याल था जो मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल coward as my husband. I won't, I won't, I won't. और वो भोली जो है वो कहती है कि हाँ, आप लोगों की इज्जत का ख्याल था, that's why I agreed for this proposal, but now I know that this man is really greedy, he is very mean and he is so heinous. Okay, he is such a coward, so I won't take him as my husband. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old woman. अब वहाँ पे एक गांव की बूढ़ी औरत होती है, वो कहती है कि कितनी बेशर्म लड़की है, और हम तो इसको बिल्कुल सीधी सादी गाय समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत तेज़ निकली। तो भोली एकदम से गुस्से में उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ती है और कहती है, येस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? वो कहती है हाँ, आप लोग मुझे एक गाय ही समझते थे, आपने कभी मुझे इंसान नहीं समझा, इसीलिए आप इस क्रूर इंसान को, इस क्रूअल इंसान को मुझे हैंड ओवर करने वाले थे। लेकिन अब जो वो हकलाती बेवकूफ़ सी लड़की थी वो अब बोलने लगी है, और क्या आपको और कुछ सुनना है? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबर नाथ समझ जाता है कि अब उसकी दालियाँ नहीं गलने वाली, सो ही रिटर्न्स। The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब जो वहाँ पे बैंड बाजे वाले होते हैं उनको समझ नहीं आता कि हुआ क्या, तो वो सोचते हैं कि शायद हो गई है सेरेमनी कंप्लीट, तो वो बैंड बजाने लग जाते हैं और कोई सॉन्ग होता है उसके ऊपर गाने लग जाते हैं। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. और रामलाल वहाँ पे स्टैचू की तरह खड़ा रहता है और उसका गर्दन जो है नीचे झुकी होती है शर्म की वजह से, दुख की वजह से। द फ्लेम्स ऑफ द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। एवरी वन वॉज गॉन। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, वॉट शैल वी डू विद यू? अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, और अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा फ्यूचर कैसा रहेगा? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी। सो सुलेखा रिप्लाइड in a very calm and steady tone that don't you worry Pitaji, in your old age I will serve you and mother
and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am? और वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करिए, जब आप और मम्मा बूढ़े हो जाओगे तब मैं आप लोगों की देखभाल करूँगी और जो गांव का स्कूल है वहीं पे मैं पढ़ाऊँगी। और फिर वो अपनी जो टीचर होती है, स्कूल टीचर, वो उसकी तरफ मुड़ती है और उससे ये चीज़ कंफर्म करती है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसकी जो स्कूल टीचर होती है, जिसने बचपन से उसको अभी तक गाइड किया होता है, पढ़ाया लिखाया होता है, इस काबिल बनाया होता है कि वो डिफेंड कर सके खुद को, वो वहीं खड़े होके सारा ड्रामा देख रही होती है। तो वो कहती है, येस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece। और वो भोली को ऐसे देखती है जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसका मास्टरपीस, तो वो जैसे अपने वर्क में एक प्राइड महसूस करता है, फीलिंग ऑफ प्राइड, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट महसूस करता है वो आर्टिस्ट, वैसे ही जो ये टीचर है वो इस टाइम फील कर रही होती है, बिकॉज somewhere down the line she was responsible for transforming Bholi into this calm, composed and confident Sulekha. Okay, so she was actually the artist and Bholi was her masterpiece. Okay, so I hope you have understood the story well. Just write a short summary of this story and do all the question answers and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.